Hello student, till today we will discuss about the charges and its property and the force on the particular charges, that is Coulomb's law. Now question arises, if I take two charges Q1 and Q2 and if I ask which one is the stronger charge, then definitely you will ask that sir, you have not given the magnitude of the charges because you have not mentioned the which one is 10 coulomb, which one is 20 coulomb, which one is bigger. But if you don't know the magnitude of charges, even then you can able to find out which one is the strongest charges. For that, we'll take a analogy of our class 11 topic, that is the gravitation chapter. So in the gravitation chapter, we have discussed something about the gravitation field and potential. I try to recapitulate all the point again. So now you see, suppose we have a two planet, this and this. For our convenience, I have taken the Earth and the Moon. So if I want to find out which is applying the more gravitational force, so what I will do, I will simply place an object here and release the object, and it will fall down on a Earth in time t1. Similarly, on Moon, if I take both the heights same and if I release both of them on the Earth, Moon, then if it is taking a time t2, then in both the cases the force will be F is equal to G mm by r square, where r is nothing but the distance from the object up to the center. Distance from the object up to the center. Then if I ask in which case time will be less, so definitely your answer will be what? It is on the Earth, it will take a less time. The reason is that because Earth is applying a more gravitational force compared to the Moon. So in this case, I don't know what amount of force it is applying, but through this activity, I came to know that the planet which is taking the lesser time, in which it is taking the lesser time, that having a more gravitational force. So gravitational force of the Earth is more than the gravitational force of the Moon. So in this case, I am taking a mass m. This mass is said to be test mass because our purpose is what? To test the gravitational force. So the force applied on this particular mass, the force per unit mass is nothing but one quantity is said to be a gravitational field. So this means to test the gravitational force, one quantity is there, that is the gravitational field, which is a vector quantity because the force is associated here. So force by mass is said to be a gravitational field of the Earth, and force by mass of the on the Moon is said to be a gravitational field of the Moon. So this means out of this one, if this one is falling in a lesser time, I can say the gravitational field of this particular Earth is more as compared to the Moon. Clear? So what is gravitational field? It is the region up to which it is applying the force. And if you take this body little bit away from the Earth, slowly after a particular distance, slowly gravitational force of the Earth will keeps on decreasing. This means up to a certain region, gravitational force is what? It is acting more. That region is said to be a what? Gravitational field. Got the idea? So this means we can able to find out the gravitational force by taking the concept of the gravitational field. Now question arises, whether this is the only criteria to test the gravitational force? No. One more criteria is there, that is gravitational potential. Okay, it is scalar quantity. What is gravitational potential? Now I am taking the same scenario in a different way. Now I will not release this duster, instead I will hold the duster here. So if I ask, suppose I want to lift this duster from here to here, and on the Moon also from here to here up to same height. So in case of the Earth, I have to do more work, okay, compared to this one. So this means more work to hold this duster will be more in case of a Earth compared to the Moon. So if I take a gravitational potential, so work done on the Earth will be more than work done on the Moon. So work done on which object? This object. Work done per unit mass is said to be a gravitational potential. So this means to test the gravitational force, there are two quantities required. One is either you go for the gravitational field, which is a vector quantity, or you go for the gravitational potential, that is a scalar quantity. Got the idea? Now question arises that how this analogy will help to understood which charge is more. Clear? Now
what I will do, instead of this gravitational force, I will replace this one with the electrostatic force. So this means our test is for the electrostatic force. Now for electrostatic force, what is required? Charge is required. So I will not take a test charge, a test mass, I will take a test charge. So I will put here Q naught. Here it is a, instead of mass, I will write a charge. This is also test charge. Clear? Now instead of earth, I will take a one charge Q1 and another charge Q2. Clear? And the total distance is nothing but the small r. This total distance is also nothing but the small r. Clear? And the force will be, the same formula will be replaced by Coulomb's formula. That is, instead of G, I will write here K, and instead of mass, I will write here Q1, Q naught, that is the this charge, and I am writing here capital so I can recognize easily. This is Q1 and Q2. The second charge is what, nothing but the Q. So whenever I will take this one, so I will put a, instead of capital Q, I will put a Q1, and instead of this one, I will put a capital 2. Okay? Now, if I choose a test charge, then what is the quality of test charge? What type of test charge I will choose? So quality of test charge is what? The test charge should be very, very small. What is the magnitude of a charge? So it is nothing but the limit delta Q naught tends to 0. इसका मतलब है क्या, टेस्ट चार्ज इतना छोटा लेना पड़ेगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा काफी छोटा होना पड़ेगा. ठीक है, तो अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूं आपको. तो जितने भी ग्रेविटेशन फोर्स थे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जज करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे फोर्स बाय चार्ज, अगर ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में लेता हूँ फोर्स बाय मास हो जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय चार्ज. अब देखिए इसको मैं जरा डिटेल में बताता हूँ कि मान लीजिए एक Q1 और Q2 दो चार्ज है और मुझे टेस्ट करना है कि इन दोनों चार्ज में से कौन सा चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है. तो मैं क्या करूँगा, एक थर्ड चार्ज को लेके आऊँगा, क्योंकि जब भी किसी के बीच में कोई कंपटीशन होता है उसको जजमेंट करने के लिए थर्ड पर्सन जरूरत पड़ता है. यहाँ पे थर्ड चार्ज कौन सा है, एक टेस्ट चार्ज है जिससे मैं टेस्ट करूँगा. अब टेस्ट चार्ज का क्वालिटी कैसा होना पड़ेगा. टेस्ट चार्ज सबसे पहले हम यूनिट पॉजिटिव लेंगे. इसका रीज़न ये है कि हमने पहले बताया था कि चार्ज को बेसिकली रिपल्सिंग इज द श्योर टेस्ट बोलते हैं. तो फिजिक्स पे जो समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआती दौर में हम लोग लिया था कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमें टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है. तो उसी कन्वेंशन को हम कंटिन्यू करते हैं. अब टेस्ट चार्ज का क्वालिटी कैसा होना पड़ेगा, एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा और एक टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, काफ़ी छोटा, मतलब टेंस टू 0. जब भी मैं टेंस टू 0 लिखता हूँ इट डज नॉट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू 0, बट इट इज नियरली 0. मीन्स इससे अगर थोड़ा सा नजदीक चले जाए तो इट बिकम अ 0. क्लियर. नाउ अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके सामने रखता हूं तो मान लीजिए ए भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है. तो इन दोनों में से मुझे पता नहीं कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं है, तो जैसे मैं इसके सामने लेके आऊंगा मैं देखूंगा कि एक कितना फास्ट मूव कर रहा है, एक कितना फास्ट मूव कर रहा है. अगर ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है इसका मतलब इसने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया. अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया, कौन सा फोर्स होगा, कूलम फोर्स होगा. F इज इक्वल टू के Q1 Q नॉट Q1 ए हो जाएगा, Q नॉट ए हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन आर ये हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें कितना फोर्स अप्लाई किया, किसको, इस चार्ज को. तो यहाँ पे फोर्स बाय चार्ज, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, के कैपिटल Q1 Q नॉट बाय आर स्क्वायर
और ये क्यू नॉट है, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एक कैंसिल हो गया। तो ये जो टर्म मिला हमें, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय द अल्फाबेट ई एंड वेक्टर सम। तो हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इट इज अ के Q1 R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका स्ट्रॉन्गर है तो ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस हम इमेजिन करते हैं इस तरह से, और ये स्पेस में जब भी मैं चार्ज को रखता हूँ, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ रखता हूँ तो फोर्स इधर अप्लाई करेगा, यहाँ रखता हूँ तो फोर्स इधर अप्लाई करेगा। ये जो रीजन है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इट इज अ स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन सा है, ए चार्ज, जो बड़ा चार्ज है उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज जब भी यहाँ पे लेके आओगे, इस टेस्ट चार्ज से इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है, इसका फोर्स में अप्लाई होगा लेकिन इसका फोर्स में अप्लाई नहीं होगा। आप जरूर सोचेंगे कि सर कूलम फोर्स तो बहुत इक्वल अपोजिट था, यस दोनों इक्वल अपोजिट है, लेकिन इसका मास कम है, क्योंकि चार्ज अगर कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, अगर मास कम होने से उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें सेकंड लॉ से पता है F = ma। तो अगर दोनों ने फोर्स सेम अप्लाई किया, जिसका मास छोटा है उसका एक्सटेंशन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो हमें जो भी मोमेंटरी डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ेगा, कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, टेस्ट चार्ज में दिखाई पड़ेगा। जिसमें टेस्ट चार्ज में अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये फोर्स कम अप्लाई कर रहा है मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इससे टेस्ट पता चलता है कि कौन सा चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिटेल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। सबसे पहले इमेजिन करिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और एक मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले गया, देन व्हाट विल हैपन, this will apply the force in this way, okay, and you can able to see this one, you can't able to see this one, it will move this way, okay, non-contact forces. And if I take this one here, this will move this side, this will move this side, this will move this side, clear. So this means this line is showing nothing but it is showing the electric field lines, and you can't able to see these lines, so this is nothing but the imaginary line. So what is electric field lines? Electric field lines is nothing but it is the lines coming out from the charge if it is source charge is positive. Now you see I have drawn something different here, so this arrow is little bit longer and slowly the length of this arrow is keeps on decreasing, which means if I move away this test charge, then slowly electric field will be keeps on decreasing, and if you move towards the source charge, then electric field will increase. So this size of the arrow will show what? It is the strength of electric field. It shows the strength of electric field. But if I imagine another source charge of sign negative, then the scenario will change. In this case, this test charge will move towards the source charge and with the electric field. Now you see again the electric field arrow is size of the arrow will what? It is a little bit keeps on increasing. Means if you move towards this side, okay, the electric field is what? It is increasing. Means it's applying the force in this side. It is applying the force in this way. Yeah. If you take a source as a negative, you'll see that field line is moving towards the charge. So, keeping this source charge as positive. Listen, if the source charge will be negative, then this whole scenario will change. But for us, our sake of convenience, I am taking a source as a positive, and throughout the chapter, I am going to take a source as a positive. So, for taking a source as a positive, I can see that the positive charge from the positive charge lines of force will comes out, okay, and towards the negative charge it will terminate. So though both are isolated,
ओके, यहाँ पे अगर मैंने कुछ चार्ज रखा नहीं, ये अलग से पॉजिटिव चार्ज है, ये अलग से नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो हमें समझ में आया कि लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये लाइन्स ऑफ फोर्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इमेजिनरी हम इसको देख ले सकते हैं। और इसका स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, इस एरो से। लेकिन मान लीजिए अगर एरो बनाते समय हमने गलती कर दिया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक क्या हो जाएगा कि जहाँ पे एरो नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। मतलब ब्रेकिंग ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। सो ये याद रखिएगा जब भी ड्रॉ करते समय, इसे हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो फिलहाल अब जो हमारा नया फील्ड लाइन्स बनेगा वो किस तरह बनेगा, हम इसको ऐसा नहीं करके सिंपली कैसा करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट। ठीक है? तो हमने सुविधा ने क्या किया कि हमने एरो सिंगल ऐसा बना दिया, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते, दिस आल्सो आउटवर्ड, दिस आल्सो आउटवर्ड, दिस आल्सो आउटवर्ड, दिस आल्सो आउटवर्ड। लेकिन ये डायग्राम एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एरो शो कर रहा है कि लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की ओर जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इससे है, लेकिन स्ट्रेंथ तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां तो ठीक था उस डायग्राम में कि एरो का साइज छोटा बड़ा कर दिया तो इजीली हो गया। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहां से एरो निकल रहा है, यहां से एरो निकल रहा है, एक छोटा सा एरिया यहां पे देखते हैं, इस साइज का एरिया, और सेम साइज का एरिया यहां ड्रॉ करते हैं, सेम साइज का एरिया यहां ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास 3 एरिया हो गए, ए बी सी, और तीनों साइज का एरिया सेम है। सो दिस मीन्स यहां से ये लाइन ऑफ फोर्स है 1 2 3, यहां से लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा जा रहा है, यहां से लाइन ऑफ फोर्स कम जा रहा है। सो दिस मीन्स दिस डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, what indicate? It indicate the strength. तो यहाँ एक सुविधा हो गया कि जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडेड आपको दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जहाँ पे क्लोजनेस कम है या ज़्यादा वाइडनेस है, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रांग है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। क्लियर? तो इस डायग्राम से पता चलता है the closer the lines of force, stronger the electric field, and wider the lines of force, weaker the electric field. हम लोग देखा कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ फोर्स वहां से निकलेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है वहां एंटरिंग करेगी। सो दिस मीन्स लाइन्स ऑफ फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव। अब जरा देखिए यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स निकल गई, यहाँ तो स्ट्रेट है। तो हमने जैसा पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर ये लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोजनेस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे फेल कैसे गया, बिकॉज यू सी दे विल रिपेल इच अदर्स, दे विल रिपेल इच अदर लाइक दिस। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकल घूम के यहाँ कहीं एंटर हुआ, तो इसे बाकी को ड्रॉ नहीं किया। अल्टीमेटली कहीं ऐसा नहीं जा रहा कि स्पेस पे नहीं जा रहा है, ये अल्टीमेटली घूम के कहीं यहीं पे आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लाइन्स ऑफ फोर्स आपका पॉजिटिव से निकल के एंटरिंग करते हैं यहाँ पे। अगर दोनों चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस क्या लेस देन 0, तो उसका लाइन ऑफ फोर्स ऐसा होगा। लेकिन अगर Q1 और Q2 मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा, देखिए ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसा होगा, ये बाहर निकलेगा, तो दोनों क्या रिपेल करेगा। सो दे विल मूव लाइक दिस, दे विल मूव लाइक दिस। तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन बनेगा, इसको न्यूट्रल रीजन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो टेस्ट चार्ज को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए बन गया, दोनों अगर पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो हम इसको नेगेटिव कर दें। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि एरो मार्क यहाँ पे जो बाहर की ओर जा रही थी, अब क्या होगा, एरो मार्क अंदर की ओर होगा। जितने भी एरो मार्क है उसको अंदर की तरफ कर दीजिए। सो ये बोथ विल बी आर नेगेटिव लाइक दिस, ये भी अंदर की ओर हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइन से ड्रॉ करने आता है। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो गया, फर्क क्या है, ये अंदर की ओर आएगा। क्लियर? अगर मुझे
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, इस पॉइंट में होगा क्या। तो मान लीजिए चार्ज को मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ, इस जगह पर रखता हूँ इस चार्ज को, ये तो रिपेल करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये काफी दूर है, ऐसा एक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। सो दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व एंड दिस इज टेंजेंट। क्लियर। सो इस पॉइंट पर अगर क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली करना क्या है, हम इसका रिजल्टेंट को शो करना है, दैट टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इफ गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर से ध्यान रखिएगा ये एरो मार्क है किधर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ इस पोजीशन में हूँ, तो टेंजेंट तो यहाँ भी होता है, इस साइड भी होता है, लेकिन किधर करेक्ट होगा, हमें ड्रॉ करना है जो ए एरो मार्क है उस साइड को। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे सिंपल टेंजेंट ड्रॉ करें, ए हो गया। ठीक है, क्लियर। सो हमने देखा कि लाइन्स ऑफ फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड सेट नेगेटिव। उसके बाद closer the lines of force, stronger the our electric field. And whenever we want to find the direction of electric field, what to do? We simply draw a tangent. So अब पढ़ते हैं properties of electric field lines. So it is imaginary continuous field lines. मतलब ये जो electric field lines है continuous है, कहीं ऐसा break नहीं है, कहीं पे ऐसा break नहीं है. It is a continuous throughout the ओके अभी डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज। ओके नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? इट इज अ इमेजिनरी कंटिन्यूअस फील्ड लाइन्स। सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फ्रॉम हियर टू हियर, देयर इज नेवर ब्रेक in between the lines. Tangent on the curve of electric field lines gives the direction of the electric field. So this means whenever you want to find out the direction of electric field at any point, draw a tangent. Clear? It originates from the positive and terminates at the negative charge. So whenever you draw the lines of force, be careful. So if a source is positive, lines of force will be away from the positive charge. Okay, and it is moving towards the negative charge. Number of lines of field originating from the or ending on a charge is proportional to the magnitude charge. So this means suppose this is a 10 coulomb of charge, then from here lines of force will move. Lines of force will move. मतलब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अगर ज्यादा हुआ इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए 1 कूलम अगर चार्ज है तो उसमें लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो देखिएगा लाइन्स ऑफ फोर्स अगर जहां जहां ज्यादा होता है इसका मतलब उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर आप लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करते, ध्यान दीजिएगा जब भी लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करेगा कभी भी दो लाइन्स ऑफ फोर्स को क्रॉस मत करिएगा। मान लीजिए किसी ने ऐसा ड्रॉ कर दिया और ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए लाइन से फोर्स अगर ए लाइन से फोर्स ऐसा क्रॉस कर रहा है, ऐसा क्रॉस कर रहा है, तो ए के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एज पर हमारा जो लॉ है डायरेक्शन निकालने का जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ और यहाँ, तो एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन है, तो मतलब चार्ज यहाँ ट्रेस चार्ज यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, विच इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन होना जरूरी है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही समय में एक चार्ज इधर और वही सेम चार्ज इधर कभी नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। सो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोजर होगा, मतलब डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज मोर, और जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेस होगा। और ये जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
हम बार बार ऐसा नहीं बोलेंगे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, बार बार नहीं बोल के एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। तो अगर मान लीजिए इस एरिया से 3 लाइन से फोर्स पास हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या कम है। अगर 5 या 6, 10 या 12 पास कर रहा है, इसका मतलब यहाँ फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस। सो स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ फोर्स अगर सेम है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जस्ट इमेजिन करिए कि एक प्लेट है और इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। एक प्लेट है, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो ए पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी विल सप्लाई द पॉजिटिव चार्ज हियर और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया मान लीजिए। तो ए पॉजिटिव चार्ज विल ओरिजिनेट द लाइन्स ऑफ फोर्स एंड टर्मिनेट हियर। तो यहाँ पे स्पेस दोनों का सेम है, लगभग नजदीक है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज, यहाँ का 5 चार्जेस है, नेगेटिव भी 5 है। इस केस में या यहाँ पे 4 मान लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव भी 4 है। क्लियर? तो यहाँ से जितने लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं उतना लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है, तो स्पेसिफिक दोनों के बीच में सेम है। इस तरह का फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप चार्ज रखोगे सब में यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाई करेगा इसको, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में होगा क्या कि इसका स्पेसिंग सही नहीं होता है। मतलब आप अगर चार्ज यहाँ पे रखो तो हमने जैसा पढ़ा क्लोजनेस द लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई होगा इससे। लेकिन आप इस चार्ज को यहाँ पे रखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइडर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम अप्लाई होगा। तो ये डायग्राम हो चुका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है। ठीक है। Now we try to find out what is the electric field due to this point charges on this one. अब हमें ये चाहिए कि ये तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये जानने के लिए, या कैसे निकालेंगे। अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे है, ये चार्ज छोटा है बड़ा है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। सो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में, इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसा होगा, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टेस्ट चार्ज काफी छोटा होना पड़ेगा। सो दिस मीन्स सोर्स चार्ज इज अ चार्ज whose electric field we have to find out, and test charge where we will means detect, we will try to calculate the electric field force applied by these charges। ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज कितना छोटा पड़ेगा, सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो अब हमें कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं यहाँ पे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था दोनों फोर्स चार्ज के बीच में, के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज अ क्यू नॉट। सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यूनिट वेक्टर किधर होगा, इस साइड होगा, लाइक दिस। ई, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो दिस इज अ के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, दैट इफ आई टेक दिस पार्ट इज कांस्टेंट, अलग अलग डिस्टेंस में जैसे मैं दूर जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इट इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ध्यान दीजिएगा, सिंगल चार्ज के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए 1 हो गया, अगर डिस्टेंस 1 मीटर है, अगर 2 मीटर हो गया 1/4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिस्टेंस को यहाँ लिखता हूँ तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इट इज लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ बनेगा। क्लियर? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट एंड कूलम, ठीक है। न्यूटन पर यूनिट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।